Hello everyone, welcome to your physics concept class. As you already know that this time we are discussing about some mathematical topics as a tools in the physics. So as in our last class we were discussing about the basic concept of trigonometry, that is about the trigonometrical ratios like sin theta, cos theta, tan theta and their values in between 0 to 90 degree. So you can consider the last class as a first part of basic concept of trigonometry and this one is as a second part of basic concept of trigonometry. So as the class is same, this is the second part of the same topic. So today we are going to discuss the same topic, that is the basic concept of trigonometry and the trigonometrical ratios with more depth and detail. So let's start our class of the day. And in our last class we have been discussed about the trigonometrical ratios like sin theta, cos theta, tan theta and their values in between 0 to 90 degree. As you can see in the table, the value of sin with 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree are 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. Same for the same angles, the value of cosine 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0 and so on. That is the tan theta. Is 0 degree for 0, 30 degree 1 upon root 3, for 45 degree 1 and for 60 degree root 3 and for 90 degree it's infinite. And we also have three more trigonometrical ratios like cot theta, sec theta and cosec theta. So we already know that the cot theta is the reciprocal of tan theta, so we can find out the value of cot theta by knowing the reciprocal of tan, and the sec theta is the reciprocal of cos theta and the cosec theta is the reciprocal of the sin theta. So we can find out easily the value of cot, sec and cosec in between 0 to 90 degree. But अब हमें देखना ये है कि क्या इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी वैल्यूज नेगेटिव भी आती हैं. वो नेगेटिव कहाँ आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और कब कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है. जैसे फॉर एग्जांपल cos 120 अगर हम नोटिस करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, जबकि इस टेबल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है. लेकिन दूसरी बात ये भी कि इस टेबल में जस्ट 90 तक की तो वैल्यू है. तो जब हम मोर देन 90 पे जाएंगे डिग्रीज में तो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी, ये कैसे डिसाइड होता है वो भी मैं आपको क्लियर के दे रहा हूँ आज की क्लास में. सो वी ऑलरेडी नो दैट अबाउट दिस कार्टेशियन प्लेन x dash y and y dash. ओके, इन एंगल ये आपको पता है एंगल 90 डिग्री है. तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री तो दिस 90 and here this is 180 and here this is 270 degree and once again in a complete cycle this is 360 degree. We already know that this is the first quadrant, this is the second, this one is third and this one is fourth. ये अपनी लास्ट क्लास में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ क्या होता है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स जब भी थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच होगी तो चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, कॉट में हो, सेक में हो, कॉसेक में हो, सारी सब में पॉजिटिव ही होगी. मीन्स 90 से कम की कोई भी वैल्यू 90 और 0 के बीच की नेगेटिव नहीं होगी. अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से टर्म पॉजिटिव होते हैं ये हमें पता है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दो टर्म होते हैं पॉजिटिव. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि
अगर एंगल की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो साइन और कोसेक इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और इनके अलावा अगर कोई है लाइक टेन में है, कॉट में है, सेक में है, ठीक है, कॉस में है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होगी। लाइक जैसे अभी भी हमने लिखा कॉस 120 डिग्री इज -1/2 फॉर एन एग्जाम्पल, तो कॉस 120 कहाँ आएगा, 90 to 180 के बीच में कहीं आएगा और ये नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये दो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब 180 से लेकर 270 के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे तो 10 और कॉट में उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और अदर में निगेटिव होगी। इन नेक्स्ट क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा, तो दीज आर पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक में अगर कोई वैल्यू आती है 270 से 360 के बीच, तो वो कॉस और सेक में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव होगी, और इनके अलावा अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज़ करते हैं लाइक 270 to 360 के बीच में, अगर 290 है, 300 है, ये सारी की सारी वैल्यू निगेटिव होंगी। कब, जब वो साइन में हो तो, जब वो टेन में हो तो, जब वो कॉट में हो तो, जब वो कॉसिक में हो तब। लेकिन अगर कॉस और सेक में है तो वो पॉजिटिव होंगी। तो इस बेहद पे हम कुछ फॉर्मूलेज बनाते हैं, ठीक है। सम फॉर्मूलेज, ओके, कौन कौन से देखते हैं। तो सब, और एक चीज़ और, अगर इसी क्वाड्रेंट को हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कॉस माइनस थीटा की वैल्यू, साइन माइनस थीटा की वैल्यू या टेन माइनस थीटा की वैल्यू, तो भी हम देख लेते हैं। इस क्वाड्रेंट में अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं ये, और इसी बेस पे हम ये ट्राइंगल ये बनाते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है ना फॉर्मूला, सबको पता होगा। तो अगर हम थीटा को यहाँ मेजर कर रहे हैं मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखिए आर्क तो ये हो जाएगा और रेडियस ये हो जाएगी, तो यहाँ पे आर्क भी पॉजिटिव है और रेडियस ये है, हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो मीन्स अगर थीटा अपवर्ड आ रहा है तो ये पॉजिटिव थीटा कंसीडर होगा, और अगर इसी थीटा को हम डाउनवर्ड मेजर करें इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो ये कहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर रिवर्स हो गया, निगेटिव बाई एक्सेस हो गया। तो फिर से अगर हम थीटा यूज करेंगे तो ये निगेटिव थीटा है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल्स टू आर्क जो है वो निगेटिव होगा माइनस आर्क अपॉन रेडियस। तो इट मीन्स इसमें ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम माइनस थीटा इसको नोटिस करेंगे। सेम हेयर, अपवर्ड वाला ट्रायंगल में थीटा पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाले में निगेटिव यूटिलाइज होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू हम निकाल के, अगर फर्स्ट कंडीशन में साइन माइनस थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो तो जब पॉजिटिव में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब नेगेटिव में है तो यहाँ देखते हैं परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस। परपेंडिकुलर यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जो भी परपेंडिकुलर की लेंथ है p अपॉन एच, और p अपॉन एच साइन थीटा की वैल्यू होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। तो क्लियरली साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर हम सेकेंड फॉर्मूले की बात करें, कॉस माइनस थीटा यूटिलाइज करना हो, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और माइनस थीटा ये है डाउनवर्ड वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज दिस, बेस इज पॉजिटिव, hypotenuse is always positive, so this is equals to base upon hypotenuse, and base upon hypotenuse is equals to cos theta. So conclusion is this, cos minus theta is equals to cos theta. For example, if we have here the value sin minus 30 degree, so the value is minus sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 होगी। और सेम हेयर, अगर हम नेगेटिव थीटा कॉस में लेते हैं माइनस 30 डिग्री, कॉस माइनस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2,
तो यहाँ पर सेम √3/2 पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये तो एक कंडीशन हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, थर्ड वन, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा। ओके, तो 90 से प्लस में जब आएगा तो 90 और 180 के बीच, और माइनस होगा तो 90 और 0 के बीच में। तो दोनों ही कंडीशन में पहले क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और दूसरे में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या होगा, लेकिन ये वैल्यूज चेंज होती हैं, ये होगा कॉस थीटा। दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव ही रहेगा, मीन्स अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो भी, और 90 से 180 के बीच में है तो भी साइन में ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब इसी टर्म को हम यूज करें, नेक्स्ट साइन 180 प्लस माइनस थीटा। ओके, 180 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ चेक करते हैं 180 प्लस थीटा जब होगा, इसका मतलब जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। 180 तो यहीं तक हो गया, यहाँ तक इनके बीच में आएगी 180 टू 270, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हम प्लस वाला साइन यूज कर रहे हैं, मीन साइन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाना चाहिए। और अगर ये 180 माइनस थीटा यूज कर रहे हैं तो 180 से कम का की वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो मीन्स ये साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस माइनस मीन्स साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होगा, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा होगा। तो इट इज साइन थीटा। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज साइन 270 प्लस माइनस थीटा। अब 270 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं, अभी मैं साइन के टर्म्स बता रहा हूँ। 270 प्लस माइनस थीटा, देखिए 270 तक तो यहीं तक कंप्लीट हो गया। अब अगर प्लस करते हैं तो इसका मीन्स एंगल की वैल्यू 270 से कहीं आगे जा रही है, इन बिटवीन 270 टू 360 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाना चाहिए, और अगर माइनस की बात करें 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ भी साइन नेगेटिव ही होता है, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज होगी। 180 में सेम रहता है, साइन का साइन रहता है, 90 प्लस या माइनस में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, 10 का कॉट हो जाता है, और यहाँ पे ये नेगेटिव ही रहेगा, और ये कितना होगा, और चेंज भी नहीं होगा, साइन का साइन ही कॉस हो जाएगा, इट इज कॉस थीटा। ओके, कन्वर्ट हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा 90 प्लस माइनस वाले में साइन का कॉस होगा, मीन्स इंटरचेंज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। 270 प्लस माइनस वाले में इंटरचेंज हो जाएंगे साइन का कॉस और कॉस का साइन। 180 वाले में सेम रहेगा, ओके, और 360 वाले में भी सेम रहेगा। अब हम सिक्स टर्म की बात करें, साइन 360 प्लस माइनस थीटा। अगर इसकी बात करें तो 300 प्लस थीटा, 300 प्लस थीटा का मीन्स 300 यहाँ 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर आगे जाएंगे, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव है ही है, तो ये प्लस ही रहेगा। और अगर हम 360 माइनस की बात करते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ साइन निगेटिव होता है, तो ये माइनस होगा, और सेम रहेगा साइन थीटा। ओके, सो साइन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस प्लस साइन थीटा, यहाँ पे सेम रह रहा है। साइन 270 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, साइन 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं 180 वाले में और 360 वाले में सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहेंगे, साइन का साइन कॉस का कॉस, बट 90 और 270 वाले में चेंज हो जाएंगे, साइन का कॉस और कॉस का साइन। अब हम कॉस की बात कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले कॉस कहते हैं। अब कॉस को देखते हैं। नेक्स्ट वन, सेवेंथ फॉर्मूला इज कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। ओके, प्लस माइनस थीटा, तो जब 90 प्लस में जाएंगे, ठीक है, 90 प्लस का मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस होगा। और अगर हम माइनस का साइन यूज करें, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा
इसमें आ जाएगा, और यहाँ सारे ही पॉजिटिव होते हैं, मीन्स कॉस पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस, और ये इंटरचेंज भी होगा, कॉस का साइन थीटा, मीन्स कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा हुआ, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एर्थ फॉर्मूला इज, एर्थ फॉर्मूला कॉस 180 प्लस माइनस थीटा. अगर हम इसको यूटिलाइज करें 180 प्लस माइनस थीटा, तो फिर चेक करते हैं 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा. 180 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड में टेन और कॉट ओनली पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, मीन्स ये कॉस नेगेटिव होगा. तो प्लस है तो ये साइन ये माइनस का आ जाएगा. और अगर कॉस 180 माइनस थीटा यूज़ करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड में भी कॉस नेगेटिव ही होता है, तो मीन्स ये जस्ट माइनस ही रहेगा, और ये इंटरचेंज भी नहीं होगा, कॉस का कॉस थीटा. नाउ द नेक्स्ट वन इज नाइन्थ, कॉस 270 प्लस माइनस थीटा. 270 प्लस 270 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो मीन्स प्लस वाले टर्म का ये प्लस ही रहेगा. और जब माइनस की बात करें 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, और 270 वाला है तो इंटरचेंज होगा. पहले भी मैं बता चुका हूँ 90 वाले में इंटरचेंज होता है, 270 वाले में चेंज होता है, 180 और 360 में सेम रहते हैं, तो यहाँ चेंज हो गए, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा. एंड टेंथ वन इज कॉस 360 प्लस माइनस थीटा. 360 प्लस माइनस थीटा कोसाइन में 360 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं, मीन्स प्लस रहेगा. और 360 माइनस थीटा अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस थीटा, और इसमें आएगा तो क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये जस्ट प्लस ही रहेगा. तो 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो इट इज़ जस्ट कॉस थीटा. तो आप फिर से देख रहे हैं दो बार चेंज होगा, 90 वाले टर्म में कॉस का साइन हो जाएगा, 180 वाले में सिमिलर रहेगा, 270 वाले में फिर चेंज हो जाएगा, और 360 वाले में फिर सिमिलर रहेगा. तो दीज आर द फॉर्मूला. इन द सेम पैटर्न वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा आल्सो. सो हियर द 11th फॉर्मूला इज tan 90 प्लस माइनस थीटा. ओके, 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ tan निगेटिव है तो इट इज माइनस, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो माइनस प्लस tan थीटा का cot थीटा चेंज हो जाएगा. एंड द 12th फॉर्मूला इज tan 180 प्लस माइनस थीटा. 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस में हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, tan पॉजिटिव है, और 180 माइनस में हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, नेगेटिव है, मीन्स प्लस माइनस, और यहाँ चेंज भी नहीं होगा, एविटिव रहेगा, tan थीटा. ओके, तो 90 प्लस माइनस थीटा में माइनस प्लस चेंज होगा, अगर 90 प्लस थीटा है tan में तो माइनस कॉट थीटा होगा, अगर 90 माइनस थीटा है तो प्लस कॉट थीटा होगा. और इन केस ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा तो 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, एंड tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा. नाउ द नेक्स्ट वन इज tan 270 प्लस माइनस थीटा. 270 प्लस में देख लेते हैं, 270 माइनस में, 270 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस में जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, मीन्स tan नेगेटिव होगा, और अगर 270 माइनस में आएगा तो थर्ड में आएगा, यहाँ tan पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस, और यहाँ इंटरचेंज भी होगा, tan का cot थीटा. नाउ द नेक्स्ट इज tan 360 प्लस माइनस थीटा. यहाँ भी चेक करते हैं, 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और माइनस है तो फोर्थ में, तो ये भी प्लस माइनस, और इसमें सिमिलर भी रहेगा, tan थीटा. तो सिमिलरली वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ cot थीटा.
sec theta and cos theta by using the quadrant. So no need to learn this term when the angle have the negative value and when it have the positive value. So you can note down the formula if you want by pausing the screen and by playing the video again. Okay. ओके नाउ कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों को जानने चाहिए जो नेसेसरी हैं, यूजफुल हैं. Some important formulae of trigonometry which are useful in the physics. Okay, so the formulas are, the first formula most commonly used जो formula है वो आपको पता है, sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay, सेकेंड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सेकेंड फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं sin a प्लस sin b, दिस इज sin a cos b प्लस cos a sin b. थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो sin a माइनस b, इट इज अगेन sin a cos b minus cos A sin B. Same the next formula in cosine, cos A plus B. Okay. Cos A cos B. This is cos A cos B minus sin A sin B. Now the next formula is cos A minus B. This is cos A cos B plus sin A sin B. The next, now the formula sin 2A is equals to 2 sin A और sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta, or it also written as 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. These are the two form of this formula and this is the most commonly used formula in some useful numericals of physics. Now the next formula is formula of cos 2 theta. It has the three form. Okay, इसको मैं उधर से नोट करता हूँ. Fifth and this one is 6. Now the formula is seventh formula. Cos 2 theta. So it is equals to cos square theta minus sin square theta. The next form is 2 cos square theta minus 1 and other one is 1 minus 2 sin square theta. These are some very important formula which are continually used in the physics numericals. So you can again note down the formula by pausing the screen, okay, and by playing the video again and again. So now I am going to rub it.
Now the next formula is 10 a plus v equals to 10a plus 10v 1 minus 10a 10v, and the second one is 10 a minus v equals to 10a minus 10v upon 1 plus 10a 10v. Another formula which is very important, 10a plus 10v plus 10c, it can be written as 10a 10v and 10c. Okay, so these are the very important formula for solving the numericals according to me. Otherwise there are lots of formula in trigonometry, okay, but I am discussing only some important formulas. Okay, so you can note down this also. Now we have to discuss some properties of triangles. That is the important properties of triangles which are useful. Some important properties of triangle. कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं. I am not teaching you the mathematics. I am teaching you the physics. But I am trying to help you in solving the numericals of physics without any obstacle in your path. Okay? Remind it. मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है. फाइन रूल. ओके, तो फाइन रूल क्या है? इफ वी हैव अ ट्राइंगल दिस ABC, इट्स दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज V एंड दिस एंगल. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? A एंगल के सामने वाली साइड A, V एंगल के सामने वाली V और C एंगल के सामने वाली C. तो जब हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ एक रूल यूटिलाइज होता है, द रेशियो ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ एंगल सस्टेन्ड बाय दैट साइड, दैट इज A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन V and also equals to C upon sin C, and these all ratios are equals to 2R, where R is circumradius of triangle. ओनली circumradius लिखे कम. अब circumradius क्या होती है वो भी डिस्कस करना चाहिए. ये तो जस्ट फाइन रूल है. मीन्स लाइक आपको किसी ट्राइंगल का एक एंगल पता है और उसके सामने वाली साइड पता है, दूसरी साइड पता है, दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं. या दो एंगल पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इन कोई से भी दो रेशियोज को इक्वल लेके, और इन सब की वैल्यू डबल ऑफ द सर्कमरेडियस ऑफ द ट्राइंगल होती है. अब सर्कमरेडियस क्या है? सर्कमरेडियस इज दिस. अगर हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल सर्कल फॉर्म किया है, दिस इज द डायमीटर and we take a point P here. Now meeting these 2 points and these 2 points. ठीक है, ये पॉइंट लिया है आपने, इसको चलिए P नहीं हम A सपोज कर लेते हैं. Now the triangle is AVC और the center of the circle is this O, and then this line which meeting with this vertex, and the center is called the circumradius of this triangle. तो ये जो ट्राइंगल है इसकी जो सर्कमरेडियस होगी उसका मीनिंग ये हुआ. ओके, तो दिस इज द सर्कमरेडियस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट रूल.
कोसाइन रूल, इसके बारे में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं फिर से नोट डाउन कर देता हूँ। इसी ट्राइंगल्स में इफ वी वांट टू कैलकुलेट, इफ वी नो द ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तीनों ही हमें पता है, और हम चाहते हैं इसका कोई एंगल फाइंड आउट करें, लाइक ए बी सी, कोई सा भी एंगल, साइड तीनों पता है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल्स में क्या होगा, लाइक वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कोसाइन रूल है तो कॉस में ही फाइंड आउट करेंगे, और जब कॉस में फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर साइन में तो हो ही जाएगी, फिर टेन में भी हो जाएगी। किसी एक टेक्नोमेट्रिकल रेशियो में हमें वैल्यू मिल जाए तो बाकी हम किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस है, इट्स फॉर्मूला इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यू कैन सी हियर ए एंगल को फाइंड कर रहे हैं तो बी स्क्वायर, वो साइड जो एंगल की साइड नहीं है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, और जो एंगल है उसकी साइड नेगेटिव है, अपॉन में जो दो साइड आई हैं वो एंगल वाली साइड नहीं है। सेम वी कैन नोट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कॉस बी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, and the third form of this formula is this, this is its first term, this is its second term, and the third one is this, cos c is equals to a square plus b square minus c square upon 2ab. This is upon 2ab, this is the value of angle A, angle B, angle C in cosine. Okay, one more term, अगर किसी ट्राइंगल का हमें सेमी पैरामीटर कहीं फाइंड करना हो, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ये होता है 2f, f से रिप्रेजेंट करते हैं सेमी पैरामीटर को, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल को हम f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2f का मीन्स क्या हुआ, टोटल पैरामीटर, और टोटल पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ द साइड्स, मीन्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे f इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको हम यूटिलाइज भी करते हैं, फॉर्मूला भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन सर्कम रेडियस और इसके टर्म में अगर हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमें तीनों साइड गिवन है, तो ये तो आपको पता है ना, तो ये राइट ट्राइंगल है ना, वो है, तो डायरेक्टली आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी सी अपॉन 4r। अगर किसी ट्राइंगल की आपको सर्कम रेडियस पता है और तीनों साइड पता है तो आप इजीली उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस डेल्टा रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज पैरामीटर और सेमी पैरामीटर इज नोन। अगर पैरामीटर पता है तो भी सेमी हम कैलकुलेट कर लेंगे बाई डिवाइडेड 2 करके, तीनों साइड पता है और सर्कम रेडियस पता है, तो इस टर्म में कहीं किसी क्वेश्चन में आपको अगर सर्कम रेडियस गिवन है और उसकी साइड गिवन है, ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, या दो साइड गिवन है, सेमी सर्कमफेरेंस गिवन है, सॉरी है ना, सेमी पैरामीटर गिवन है तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों साइड गिवन है, सर्कम रेडियस गिवन है, एरिया चाहिए तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक थे कुछ जो मुझे लगा कि आपको आने चाहिए एज ए मैथमेटिकल टूल्स इन द फिजिक्स, तो वो मैंने डिस्कस किए। लास्ट क्लास में भी कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट डिस्कस किया और इसमें भी कुछ डिस्कस किया। सो इतना ही फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का टर्म यूजफुल रहेगा, और वैसे तो बहुत कुछ है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, और बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट एंड दिस रिक्वायर द होल सेशन टू टीच, बट आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग the concept of mathematics which are or which may be useful in the physics. So that's all for today. Now we will meet in our next class. Keep watching me on your own channel, Dikshit Physics Point.